Welcome to the next part of marathon series. In today's class, we are going to understand about central tendency. As you can see the overview of the chapter, we'll first understand what is central tendency. Then we will go ahead with measures of central tendency. We'll first understand central tendency, then we will understand measures of central tendency, and then what are the ideal measures of central tendency. So as you can see on the screen that basically three measures are there: mean, median, mode, and mean is divided into three parts: AM, GM, HM. Then we have to study properties also of each and every measures. We have got special entry partition values, which is likely median but not median, quartile, decile, percentile. So let us start. As we know, in statistics they can ask a lot of theoretical questions from us. So side by side, when you are practicing practical oriented problems in statistics, it is also very important to understand what kind of theory they can ask. So theory, MCQ theory only way we can answer when we study the entire textbook properly. Okay. So let us do that, and then we will identify the areas where we have to underline. In many a case like the distribution of height, weight, marks, profit, wage, and so on, it has been noted that starting with rather low frequency, the class frequency gradually increases till it reaches the maximum somewhere near the central part of the distribution, and after which the class frequency steadily falls to its minimum value towards the end. तो बोलता है कि जो मिनिमम पॉइंट होता है और जो मैक्सिमम पॉइंट होता है उसमें कॉन्सेंट्रेशन जनरली उतना नहीं होता है जितना कॉन्सेंट्रेशन होता है बीच वाले वैल्यूज में. ठीक है. सो वही ये लोग बात कर रहा है उसी चीज के बारे में. तो सेंट्रल टेंडेंसी को हम लोग बोल सकते हैं गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन टू क्लस्टर अराउंड अ सिंगल सेंट्रल और मिडिल वैल्यू, एंड द सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स द गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस is described as a measure of central tendency or location or average. Hence, it is possible to condense a vast mass of data by a single representative value. So, technically अगर हम लोग देखेंगे, so इस चैप्टर में एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू आएगा. इस चैप्टर में सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू आएगा. ठीक है. जो क्लस्टर करेगा अराउंड अ सिंगल सेंट्रल और मिडिल वैल्यू. जो क्लस्टर करेगा अराउंड अ सिंगल central or middle value. The computation of the central tendency plays a very important part in many a sphere. A company is recognized by its high average profit, and education is judged by the basis of average marks obtained by students and so on. Furthermore, the central tendency also facilitates us providing a basis for comparison. It also provides us between different distribution. It provides a basis for comparison. Comparison नहीं देता है, एक बेसिस देता है जिसके बेस में हम लोग जिसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, लाइक एवरेज वेजेस बिटवीन मेल एंड फीमेल, एवरेज हाइट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, लाइक दैट. सो मीन, मीडियन, मोड, एंड मीन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू थ्री टाइप्स: AM, GM, HM. इसको हम लोग मैथमेटिकल मेजर बोलते हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं. मीन इज नोन एज मैथमेटिकल एवरेज, वेयर एज मीडियन एंड मोड आर नोन एज पोजिशनल एवरेज. मीन इज नोन एज मैथमेटिकल एवरेज, वेयर एज मीडियन एंड मोड आर नोन एज positional average. whereas
median and mode are known as positional average. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है. ठीक है, सो क्या बोल रहा है, ध्यान से करके पढ़ते हैं हम लोग. इट शुड बी प्रॉपरली एंड अनएम्बिगुअसली, मतलब अगर इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो आप लिख सकते क्लियरली. अगर आपको अनएम्बिगुअसली का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, इसको आप बोल सकते हैं क्लियरली. इजी टू कॉम्प्रीहेंड, सिंपल टू कंप्यूट, बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस. ऑल द ऑब्जर्वेशंस का मतलब क्या है, x1 x2 डॉट 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 xn. अगर एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इन सबको कंसिडर करके आंसर निकालना है हम लोग को. It should also possess desirable mathematical properties and should be least affected by the presence of extreme observations. Extreme का मतलब क्या हो रहा है, first and the last. Extreme का मतलब क्या है, first and the last. एक्सट्रीम का मतलब है फर्स्ट एंड द लास्ट. तो जिस भी मेजर में ये सारे प्रॉपर्टीज होंगे, हम लोग उसको ही आइडियल मेजर मान सकते हैं. हम लोग उसको ही आइडियल मेजर मान सकते हैं. ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं. अरिथमेटिक मीन. ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन क्या है, समेशन x बाई n. इसको बोल सकते हैं हम लोग x बार, दैट इज टोटल बाई नंबर. क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, समेशन x बाई n दैट इज टोटल बाई नंबर. इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल सीरीज. ये जो फॉर्मूला बोर्ड में लिखा हुआ है, दिस इज नोन एज सिंपल सीरीज. सिंपल सीरीज का मतलब रॉ डेटा होता है. सिंपल सीरीज का मतलब होता है रॉ डेटा. सिंपल सीरीज का मतलब होता है नो रॉ डेटा. सिंपल सीरीज का मतलब होता है रॉ डेटा. तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटर में सब टोटल करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका. अगर यही आपको यहां पर n पूछेगा तो n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल बाई एवरेज. और टोटल निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे, नंबर इंटू एवरेज. टोटल निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे, नंबर इंटू एवरेज. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डेफिनेशन मेथड. दिस इज नोन एज डेफिनेशन मेथड. दिस इज नोन एज डेफिनेशन मेथड. क्योंकि आप देखेंगे, मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, मे बी डिफाइंड एज सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन divided by the number of observation. Once again I am highlighting it. Sum of all the observations divided by the number of observation. This is the definition method बोलते हैं इसको हम लोग. This is known as the definition method. ठीक है, x bar is the way how we donate arithmetic mean. जनरली कुछ नहीं बोलता है तो उसको हम लोग अरिथमेटिक मीन कंसिडर करते हैं. जनरली अगर कुछ नहीं बोलता है तो हम लोग उसको AM बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज फॉर अ सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो बोल रहा है यहां पर,
इसमें दो टाइप आएगा, एक डिस्क्रीट डेटा, एक डिस्क्रीट डेटा जिसमें x का कॉलम रहता है, f का कॉलम रहता है। तो आप क्या करते हैं, आप fx का एक कॉलम बनाते हैं एंड देन यू कैलकुलेट टोटल ऑफ f and total of fx. The formula begins summation fx by summation f, and summation f को हम लोग कैपिटल N भी लिखते हैं। टोटल फ्रीक्वेंसी, total frequency, this is in the case of discrete data, जहां पर आपको x पता है, f पता है। but there is one more situation, grouped frequency distribution, grouped data, वहां पे आपको क्लास इंटरवल पता रहता है, फ्रीक्वेंसी पता रहता है। आप क्या करते हैं, वहां पर x का अजम्पशन लेते हैं। You assume midpoint as x, with x as the mid value of the class interval, with x as the mid value of the class interval, and then you know f, you know x, we follow that. डिस्क्रीट डेटा में x पता रहता है, ग्रुप डेटा में we assume mid point as x, we assume midpoint as x। ये जितना भी हम लोग अभी सीखे हैं ये सब डेफिनेशन मेथड है। ऑल दिस आर डेफिनेशन मेथड। नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू लर्न is the step deviation method. This is the step deviation method. This is known as step deviation method. Step deviation method. A means assumed mean of x. A is assumed mean. We take summation f d dash by summation f into I, जहां पर d dash का मतलब होता है वेरिएबल माइनस अज्यूम्ड मीन बाई I. दिस इज I क्लास लेंथ, दिस इज I क्लास लेंथ, दिस इज I क्लास लेंथ। बट देखो ये तभी अप्लाई होगा, थ्योरी में तुमसे पूछेगा व्हेन इट इज मोस्ट सुटेबल टू अप्लाई। इसका आंसर ये होगा इफ द क्लासिफिकेशन इज यूनिफॉर्म, इफ द क्लासिफिकेशन इज यूनिफॉर्म, इफ द क्लासिफिकेशन इज यूनिफॉर्म, then only we should apply, then only we should apply, then only we should apply step deviation method, then only we should apply step deviation method, then only we should apply step deviation method. चलिए एग्जांपल्स करेंगे और बेटर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। इस सब में क्या करना है, सीधा कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेटर निकाल करके ये जितना वैल्यूज है एक कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेटर निकाल करके ये जितना वैल्यूज है 9 वर्कर्स का सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 9 करो,
देखो आंसर आएगा, सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 9 करो, आंसर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी हैज यूनिट्स। तो जो भी आंसर लिखेंगे हम लोग यूनिट्स को ध्यान रख के लिखेंगे। जैसे यहां पे रुपया है तो रुपीज में आंसर आएगा। सेंट्रल टेंडेंसी कैरीज यूनिट्स, तो उस चीज के बारे में ध्यान देना है, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन ए 62.44, ऑप्शन बी ₹62.44, तो आप कौन सा आंसर में टिक करके आएंगे? बी वाले में। आप कौन से आंसर में टिक करके आएंगे? बी वाले में। सेंट्रल टेंडेंसी कैरीज यूनिट्स। ठीक है, आसान से सवाल था। अब यहां पर आप देखिए कि इस टाइप का जो क्लास होता है, दिस इज नोन एज एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। एक्सक्लूसिव नहीं होता है, ये इंक्लूसिव होता है। दिस टाइप ऑफ क्लास इंटरवल इज नोन एज इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। क्यों? ओवरलैपिंग नहीं है। 48 में खत्म होकर 49 में स्टार्ट हो रहा है। 48 में खत्म होकर 49 में स्टार्ट हो रहा है। तो यहां पे 44, 45, 46, 47, 48। आपको देख के लगेगा, बाय ऑब्जर्विंग यू विल सी द क्लास लेंथ इज 4 बट इट इज 5। क्लास लेंथ कैसे निकालेंगे इसका? इसका क्लास लेंथ कैसे निकालेंगे? जो भी अपर क्लास लिमिट है माइनस लोअर क्लास लिमिट प्लस 1। अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट प्लस 1। तो 48 माइनस 44 प्लस 1 दैट इज 5। 73 माइनस 69 प्लस 1 दैट इज 5। और यहां पे यूनिट्स केजीज में है। यहां पे जो यूनिट्स है वो केजीज में है। यहां पे जो यूनिट्स है वो केजीज में है। और टोटल स्टूडेंट्स मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है मेरे को मिड वैल्यू निकालना है, उसको x मान लेंगे हम लोग, fx का टोटल करके डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। यहां हम लोग कैलकुलेटर यूज करेंगे m+। यहां हम लोग को कैलकुलेटर यूज करना है m+। सो व्हाट विल बी द टेक्निक? 46 इंटू 3 m+, 51 इंटू 4 m+, 56 इंटू 5 m+, 61 इंटू 7 m+, 66 इंटू 9 m+, और 71 इंटू 8 m+। 2 बार MRC करेंगे तो 2211 आ रहा है, डिवाइडेड बाई 36 इक्वल्स टू, तो 61.4166 आ रहा है, तो 61.42 kgs आएगा आंसर। 61.42 kgs आएगा आंसर। इस टाइप के सम्स में वी हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी प्लस। इस टाइप के कॉन्सेप्ट में वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी प्लस टू मेक द ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
अब यहां पर अगर हम लोग मिड वैल्यू लेके करने जाएंगे तो x का वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा। हालांकि हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग तो m प्लस यूज कर रहे हैं, बट आपको क्या करना है, टेक्निकली हम बता रहे हैं आपको 1 2 3 4 5 6 7, तो जो बीच वाला वैल्यू है ना उसको 0 पकड़ लो। ये मैं सीधा आपको d डैश निकालना सिखा रहा हूं। जो बीच वाला वैल्यू है उसको 0 पकड़ लो। अब जब इधर आएंगे हम लोग -1 -2 -3 करेंगे, उधर जाएंगे तो हम लोग 1 2 3 करेंगे। बीच वाला वैल्यू को 0 पकड़ लेंगे। जब टूवर्ड्स द लेफ्ट जाएंगे तो -1 -2 -3 आ गया, और उधर जाएंगे तो 1 2 3। अब आपको यहां पर a निकालना है। a क्या होगा, जिसको 0 अज्यूम किए हैं उसका मिड वैल्यू। a क्या होगा, जिसको आप 0 अज्यूम किए हैं उसका मिड वैल्यू। तो 419.5 ठीक है। अब मेरे को यहां पर i चाहिए। i क्या होगा, देखो यूनिफॉर्म है, क्लास लेंथ इज 20, देख के 19 लग रहा है, देख के 19 लग रहा है, बट क्लास लेंथ इज 20 क्योंकि ये इंक्लूसिव क्लास इंटरवल है, तो माइनस करके +1 करना पड़ता है। नाउ वी विल यूज द कैलकुलेशन टेक्निक विच इज m+m- वाला भी यूज होगा यहां पर, क्योंकि माइनस भी है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, 23 इंटू 3 m-, 38 इंटू 2 m-, 58 इंटू 1 m-। 0 वाला करने का दरकार नहीं है क्योंकि 82 इंटू 0 क्या होगा, 0। फिर 65 इंटू 1 m+, 31 इंटू 2 m+, 11 इंटू 3 m+। MRC कर रहा हूं मैं तो मेरा -43 आ रहा है, तो एक जगह मैं नोट कर लूंगा, समेशन FD डैश इज -43। मैं फिर से कैलकुलेशन रिपीट कर रहा हूं, 23 इंटू 3 m-, 38 इंटू 2 m-, 58 इंटू 1 m-। 0 वाला करने का दरकार नहीं है। 65 इंटू 1 m+, 31 इंटू 2 m+, 11 इंटू 3 m+। 2 बार MRC -43 आ रहा है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी का टोटल करना होगा, फ्रीक्वेंसी का टोटल करो, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। 308 आ रहा है, समेशन F इज 308। तो अब फॉर्मूला क्या बोलता है, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन FD बाई समेशन F इंटू आई। यह भी कैलकुलेटर में आसानी से हो जाएगा। -43 डिवाइडेड बाई 308 इंटू 20 प्लस 419.5, तो मेरा आ रहा है 416.5 यूनिट्स, 71 यूनिट्स, 416.71 यूनिट्स, 416.71 यूनिट्स, 416.71 यूनिट्स। अब हम लोग अपना कन्वीनियंस के लिए बीच वाले को 0 लिए है, बट आप देख सकते हैं यहां लिखा क्या है, एनी मिड वैल्यू कैन बी टेकन एज ए। फॉर आवर कन्वीनियंस we take it as the middle most mid value। बट हम लोग किसी को भी मान सकते हैं। अब जो पैरामीटर है जैसे समेशन FD डैश, अगर आप इसको नहीं मान के इसको मानेंगे तो खाली ये चेंज होगा, ये भी सेम रहेगा, I का वैल्यू भी सेम रहेगा, A का वैल्यू चेंज होगा। तो जैसे जैसे A का वैल्यू चेंज होगा वैसे वैसे समेशन FD डैश भी चेंज होगा।
तो आइए चलिए हम लोग आंसर मैच करते हैं, उतना ही आ रहा है। नाउ दिस इज मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सम्स, दिस इज मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सम्स। और आप ध्यान रखिए, अगर दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो दो इक्वेशन बनेगा, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो एक इक्वेशन से ही आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूं, चेक करूंगा क्या यहां पर मेरा क्लास इंटरवल यूनिफॉर्म है। हाँ है, जहां भी क्लास इंटरवल यूनिफॉर्म रहेगा वहां आप स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर क्लास लेंथ जो है वो 3 का है। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको 0 मानता हूं, तो ये -1 -2, ये 1 और 2। अब मेरे को पता नहीं है, इसको मैं F1 ले ले रहा हूं, इसको मैं F2 ले ले रहा हूं। तो मेरा क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए, मेरा आ रहा है -10 -18, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस F2 प्लस 16 होल डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 67.45। इसको हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 3 से, प्लस इसका मिड वैल्यू 67 है, ए प्लस समेशन एफ डी बाई समेशन एफ इंटू आई। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो -28 प्लस 16 -12, 67 उधर चला जाएगा, 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो रहा है देखो, 67.45 माइनस 67 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3, 15 आ रहा है। ये वहां जाएगा, 100 मल्टीप्लाई होगा, 3 डिवाइड होगा, तो मेरा इक्वेशन बन रहा है F2 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 15। तो F2 आ गया 27। अब क्योंकि मेरा F2 आ गया 27, क्योंकि मेरा F2 आ गया 27, टोटल 100 है, चलो माइनस करो, 100 माइनस 5 माइनस 18 माइनस 27 माइनस 8, तो जो 42 बच रहा है वो मेरा F1 होगा, जो 42 बच रहा है वो मेरा F1 होगा। अब ये दिमाग लगाओ, अगर इसको मैं 0 पकड़ता तो मेरा 2 इक्वेशन बनता और मेरे को फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ता। क्या दरकार है वो करने का मेरे को, मैं दिमाग लगा के इसको 0 पकड़ा ताकि एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी हट गया, तो पहला इक्वेशन से पहला आ गया, फिर नॉर्मल माइनस करेंगे तो आ जाएगा। सो ऑलवेज अज्यूम वन ऑफ द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज एज सच कि वो मल्टीप्लाई होके 0 हो जाए, वो मल्टीप्लाई होके 0 हो जाए। तो आप देख सकते हैं हम लोग भी इसको ऐसे ही पकड़े, 27 आ रहा है, 42 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ध्यान से समझो। If all the observations assumed by a variable are constants, say k, then the AM is also k. इसका मतलब अगर क्लास में 5 स्टूडेंट है, पांचों को 10 नंबर मिला है, पांचों को 10 नंबर मिला है, तो इसका मीन क्या होगा, 10 होगा। सबका वैल्यू सेम है तो उसका एवरेज भी तो वही होगा ना, सबका वैल्यू सेम है तो उसका एवरेज भी तो वही होगा। पहला प्रॉपर्टी क्लियर है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर एम बोला है, तो यहां पर x माइनस एक्स बार का बात कर रहा है। तो
एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ x माइनस एक्स बार, और फ्रीक्वेंसी के केस में f इंटू एक्स माइनस एक्स बार 0 होगा। थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमको बहुत बार ऐसे भी पूछ देगा, समेशन x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, फाइंड मीन। बोलो आंसर क्या होगा? समेशन x माइनस 7 इक्वल टू 0, फाइंड मीन। तो 0 कब होता है? जब समेशन x माइनस एक्स बार होता है। यहां पर x बार की जगह वैल्यू क्या है? 7। इसका मतलब 7 इज द मीन। यहां तो लिखा है ना समेशन x माइनस एक्स बार क्या है? 0 है। यहां समेशन x माइनस 7 0 है। तो अगर तुम दोनों को कंपेयर करेगा तो x बार की जगह क्या है और x बार का मतलब क्या है? 7। x बार इज मीन ना, तो मीन की जगह 7 है, तो मीन का वैल्यू क्या हुआ? 7। AM is affected due to a change of origin and scale। origin मतलब होता है AM के हर टर्म को प्लस माइनस करना, और स्केल का मतलब होता है इनटू डिवाइड करना। तो इसका बोलने का मतलब यह है कि अगर तुम सारे वैल्यूज को 50 से बढ़ा दो, इफ यू आर इंक्रीजिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल by 50, the average will also increase by 50, and if you are decreasing all the values by 10, the average will also decrease by 10. If you are multiplying all the values by 2, the average will also multiply by 2. तो से फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं, उसमें 15 एम्प्लॉइज है। अगर मैं ये बोलता हूं कि द एवरेज वेजेस या एवरेज सैलरी पेड बाय मी इज 15,000, द एवरेज सैलरी पेड बाय मी इज 15,000, दिस ईयर आई एम प्लानिंग टू गिव 10% इंक्रीमेंट, this year I am planning to give 10% increment, what will be my revised average payout? तो लोग क्या करेंगे? लोग क्या करेंगे? हर एक का सैलरी में पहले 10% ऐड करेंगे, फिर उसका टोटल करेंगे, फिर उसको डिवाइड बाय 15 करेंगे। मैं क्या करूंगा? मैं प्रॉपर्टीज याद रखूंगा। प्रॉपर्टीज में क्लियरली क्या बोला है? AM is affected by change of origin and change of scale। देखो and और दोनों वर्ड यूज किया है। इसका मतलब या तो सिर्फ चेंज ऑफ ओरिजिन होगा, या सिर्फ चेंज ऑफ स्केल होगा, या चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल दोनों होगा। जैसे कि नीचे वाले एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप, y is equals to 7 minus 2x minus 7 minus 2x by 3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि पहले -2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, फिर -7 से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, उसके बाद उसको क्या किया जा रहा है? 3 से डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, जो भी डेटा सेट है उसमें सिर्फ प्लस करना है माइनस करना है, ऐसा नहीं है। उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करके प्लस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके माइनस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे वर्ड जो यूज हुआ है एंड और का वर्ड जो यूज हुआ है, इसका मतलब यही होता है कि चेंज ऑफ ओरिजिन भी हो सकता है, चेंज ऑफ स्केल भी हो सकता है, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल भी हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका शॉर्टकट लिख लो, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स and get the value of y. Put the value of x and get the value of y. Put the value of x and get the value of y.
ठीक है, नेक्स्ट पूल्ड मीन और ग्रुप्ड मीन। तो सिंपली आपको क्या करना है, हर एक ग्रुप का वैल्यू निकालना है, सबको ऐड करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप। इसका एक शॉर्टकट है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो ये है कि n1 बाई n2 इज x2 बार माइनस कंबाइंड मीन बाई कंबाइंड मीन माइनस x1 बार। अगर दो ग्रुप दिया हुआ है, उसमें अगर आपको रेशियो निकालना है तो कैसे निकालेंगे, दिस इज द शॉर्टकट, दिस इज द शॉर्टकट। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर n1 n2 मिला के 100 हो रहा है ना, तो आप डायरेक्टली परसेंटेज भी यूज कर सकते हैं, आप डायरेक्टली परसेंटेज भी यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर मैं कैसे निकाल लूंगा, 5200 इंटू 40% m प्लस और 6800 इंटू 60% m प्लस। दो बार MRC करिए, देखिए आंसर आ जाएगा, कोई फॉर्मूला पुट करने का दरकार नहीं है आपको। 5200 इंटू 40% m प्लस 6800 इंटू 60% m प्लस ठीक है ना। और n1 इज टू n2 का वो फॉर्मूला है, सेकेंड ग्रुप का एवरेज माइनस कंबाइंड एवरेज बाई कंबाइंड एवरेज माइनस फर्स्ट ग्रुप का एवरेज। मोर देन 2 ग्रुप्स के लिए भी हो सकता है, 3 ग्रुप वाला मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, n1 इंटू x1 बार, n2 इंटू x2 बार, n3 इंटू x3 बार होल डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मीडियन एज कंपेयर टू एम, मीडियन इज ए पोजिशनल एवरेज, ये मैंने पहले ही लिखा दिया क्लास में, which means the value of the median is dependent upon the position of the given set of observation for which the median is wanted. Median for a given set of observation may be defined as the middlemost value when the observations are arranged either in an ascending order or descending order of magnitude. तो कुछ भी निकालने के पहले सबसे पहले हम लोग को छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा अरेंज करना होगा। कुछ भी निकालने के पहले हम लोग को छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा हम लोग को अरेंज करना होगा। हम लोग यही फॉलो करेंगे एग्जाम में, वी विल फॉलो असेंडिंग ऑर्डर, वी विल फॉलो असेंडिंग ऑर्डर, वी विल फॉलो असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो सिंपल सा चीज देखो, यहां पर या तो n का वैल्यू 7 आएगा, तो हम लोग को क्या करना है, 7 प्लस 1 बाई 2th टर्म, तो 4th टर्म आया,
ये जो फोर्थ टर्म आया है मेरा, दिस इज नोन एज रैंक, इसको बोलते हैं रैंक ऑफ द मीडियन। ये मीडियन नहीं है, ये रैंक ऑफ द मीडियन है। जो फोर्थ टर्म का जो वैल्यू होगा, फोर्थ टर्म का जो वैल्यू होगा उसको बोला जाता है मीडियन। फोर्थ टर्म का जो वैल्यू होगा उसको बोला जाता है मीडियन। फोर्थ टर्म का जो वैल्यू होगा उसको बोला जाता है मीडियन। जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर 7 है, 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 4, तो चौथा पोजीशन में जो वैल्यू होगा दैट इज द आंसर ऑफ द मीडियन। चौथा पोजीशन में जो वैल्यू होगा दैट इज द आंसर ऑफ द मीडियन। अब हम लोग अलग अलग मेथड नहीं सीखेंगे, हम लोग एक ही मेथड सीखेंगे कि अगर मीडियन निकालने बोलेगा तो क्या करना है हम लोग को, n प्लस 1/2। तो इफ n इज इक्वल्स टू 8, इन दैट केस मीडियन is equals to 8 plus 1/2th term, which is 4.5th term। कोई घबराने वाला बात नहीं है, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म का एवरेज लेना है। फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म का एवरेज लेना है। फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म का एवरेज लेना है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, 4 प्लस 0.50 ब्रैकेट में 5 माइनस 4, 4 प्लस 0.50 ब्रैकेट में 5 माइनस 4। इसका बोलने का मतलब आपका ये है सर, कल को मान लीजिए किसी में अगर 4.30 आया तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 4 प्लस 0.30 ब्रैकेट में 5 माइनस 4। Here 4 indicates fourth term and 5 indicates fifth term। ठीक है, थ्योरी में पूछेगा, थ्योरी में पूछेगा तो तुमको बोलना पड़ेगा सिंपल एवरेज ऑफ n by 2th term and n plus 2 by 2th term। Simple average of n by 2th term and n plus 2 by 2th term। ठीक है, ये जो भी हम लोग सीखे हैं ये सिंपल सीरीज के लिए सीखे, रॉ डेटा, दिस इज फॉर रॉ डेटा। 8 वर्कर्स है तो सिंपली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, 1 2 3 4 को सर्कल करेंगे, उसके बाद वाले को सर्कल करेंगे और दोनों का एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, अब इंस्टीट्यूट के मैथ में जो फॉर्मूला दिया हुआ है ना वो तो मेरे को सीखना ही पड़ेगा, इसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट है याद रखना, बट टेक्निकल में समझेंगे हम लोग तो कोई दिक्कत नहीं होगा हम लोग को। L1 मतलब बोलता है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, दैट इज द क्लास कंटेनिंग मीडियन। n का मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी, NL का मतलब लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग टू L1,
प्री मीडियन क्लास, एंड NU का मतलब है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग टू L2, दैट इज पोस्ट मीडियन क्लास. L2 का मतलब बीइंग द अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, बीइंग द अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास. L2 का मतलब C क्या हो जाएगा, L2 माइनस L1. C क्या हो जाएगा, L2 माइनस L1. ये जो भी आप देख रहे हैं ना, इसमें एक कंडीशन आ जाएगा, क्लास इंटरवल मस्ट बी कंटिन्यूअस, 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 क्लास इंटरवल मस्ट बी कंटिन्यूअस. एंड तुमसे पूछ सकता है कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किए है. ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है बाय द मेथड ऑफ सिंपल इंटरपोलेशन. सिंपल इंटरपोलेशन मेथड, सिंपल इंटरपोलेशन मेथड जब भी कभी आप सीखेंगे, ये वहीं से आया है, सिंपल इंटरपोलेशन मेथड. ठीक है. अब वो जो मीन वाला सम है उसी को एग्जांपल लिया है. जो मीन वाला सम था 350 से 369, 370 से 389, 390 से 409. ठीक है. अब हम लोग ये क्लास बाउंड्री निकाल कैसे रहे हैं. देखो सम्स में क्या क्या दिया हुआ था. सम्स में ये दिया हुआ था कि 350 से 369, 369 से 370. तो हम लोग क्या चेक करते हैं, कहां खत्म हो रहा है. आई एम सॉरी, 370 से 389 हम लोग ये चेक करते हैं कहां खत्म हो रहा है और कहां शुरू हो रहा है. तो डिफरेंस यहां पर 1 का है, देयरफॉर एडजस्टमेंट फैक्टर इज हाफ. ये अगर डिफरेंस 0.1 का होता तो एडजस्टमेंट फैक्टर 0.05 होता. अगर 0.01 मेरा एडजस्टमेंट डिफरेंस है तो मेरा एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होता है, 0.005. तो ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा आपको. तो सारा लोअर लिमिट को हम लोग माइनस करते 0.5 से और सारा अपर लिमिट को प्लस करते 0.5 से. ठीक है. अब लेस देन में क्या है, इसके नीचे तो कुछ जाएगा ही नहीं क्योंकि मेरा स्टार्टिंग वैल्यू तो ये है, इसके नीचे 0 है. अब एक एक करके फ्रीक्वेंसी ऐड करते जा रहे हैं हम लोग, एक एक करके फ्रीक्वेंसी ऐड कर रहे हैं. तो लास्ट वाले को हम लोग बोलते हैं कैपिटल एन, लास्ट वाले को हम लोग बोलते हैं कैपिटल एन. फिर हम लोग निकालते हैं रैंक ऑफ द मीडियन. दिस इज नोन एज रैंक ऑफ द मीडियन, दिस इज नोन एज रैंक ऑफ द मीडियन. अब ये यहां लाई कर रहा है, ये यहां लाई कर रहा है, ये यहां लाई कर रहा है. तो हम लोग का फॉर्मूला में क्या था, देखो ध्यान से, L1 प्री मीडियन क्लास, L2 पोस्ट मीडियन क्लास, NL क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री, NU क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोस्ट. ठीक है. और क्लास लेंथ कितना है, 20 का है. C इज क्लास लेंथ ना, तो किसी को भी किससे L2 माइनस L1 करने से क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा. तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस N/2 माइनस NL बाई NU माइनस NL इंटू I. तो ये तो हम कैलकुलेटर में ही कर सकता है, ये तो हमको कैलकुलेटर में ही करना आसान रहेगा. कैसे, पहले डिनोमिनेटर सॉल्व करूंगा मैं, 201 माइनस 119 m प्लस. फिर मैं न्यूमरेटर सॉल्व करूंगा, 154 माइनस 119 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 बार MRC इक्वल्स टू जो भी वैल्यू आया उससे प्लस कर दूंगा L1 को, 409.5.
तो 418.03 यूनिट्स, 418.03 यूनिट्स। कभी भी हम लोग को अगर फ्रैक्शन वाले में कैलकुलेटर यूज करना है, डिनोमिनेटर को सॉल्व करके m प्लस, न्यूमरेटर को सॉल्व करके डिवाइड, 2 बार MRC, ठीक है। तो यू विल सी कि मेरा आ गया आंसर, राउंड ऑफ करके मेरा ये आंसर आ रहा है, राउंड ऑफ करके मेरा ये आंसर आ रहा है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट वाला, चलो हम लोग ट्राई करते हैं, इस समय हम लोग बना के देखते हैं हम लोग को बनाना आता है कि नहीं आता है। कंटिन्यूअस है तो तुम क्या लिखेगा, 0, 10, 20, 30, 40, 50, यही तो। अच्छा, क्योंकि मेरे को पता है मीडियन क्या है, 23 है, तो दिस हैज टू माई प्री मीडियन क्लास and this has to be my post median class. Yes. So 5, ये तो 0 होगा, 5, 13, 13 plus f, 19 plus f, 22 plus f. Now we know that median lies here. So this is my NL, this is my NU. अच्छा, difference between this is I, that is 10. तो इक्वेशन क्या बन रहा है मेरा, मीडियन इज इक्वल्स टू L1 प्लस n/2 क्या होगा, 22 प्लस f, 22 प्लस f बाई 2 माइनस NL 13 बाई 13 प्लस f माइनस 13 इंटू 10, यही तो बनेगा इक्वेशन। अब सॉल्व करना है मेरे को, ये इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू 22 प्लस f माइनस 26, एलसीएम लेंगे, बाई f इंटू 10, इसको वहां भेज दो तो 3f इक्वल्स टू, अच्छा f माइनस 4 बाई 2 इंटू 10, सॉल्व कर लो, 2 5 जो चला जाता है वो, तो मेरा क्या आ रहा है, 3f इक्वल्स टू 5f माइनस 20 और 2f इक्वल्स टू 20 और f इक्वल्स टू 10 और f इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बिगाड़ना नहीं है हम लोग को, जो कॉन्सेप्ट समझे हैं उस कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग को आगे बढ़ना है। देख लो F10 आ गया है ना। नेक्स्ट, वी कैन नॉट ट्रीट मीडियन मैथमेटिकली, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। अब लोग खाली अगर ये पढ़ के चला जाए तो आंसर ही गलत हो जाएगा उसका, उसके बाद वाला तो पढ़ो। द वे वी कैन डू फॉर AM, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब अनलाइक AM मीडियन डज नॉट हैव सो मच ऑफ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। कुछ कुछ है, जैसे वो चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल वाला पार्ट सेम है, जैसे मैं बोल रहा था यहां पर पुट द वैल्यू गेट द आंसर,
पुट द वैल्यू, गेट द आंसर. तो यहां पर मीडियन ऑफ एक्स दिया है, तो 2 इंटू 16 -10 इक्वल्स टू 5y और 22 इक्वल्स टू 5y और y इक्वल्स टू 4.40. तो y मीडियन क्या हो जाएगा? मतलब यहां पे x का मतलब ही x मीडियन है और y का मतलब ही y मीडियन है. सिंपली पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर. For a set of observation, the sum of absolute deviation. Absolute deviation मतलब होता है just the distance, just the magnitude, not the sign. मतलब मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ द डेविएशन. अगर तुमको बोलेगा इज मिनिमम, फाइंड मीडियन, तो आंसर क्या होगा? तो पहले तुमको सोचना है मॉड्यूलस वैल्यू मिनिमम कब होता है? जब वो मीडियन से डिफरेंस निकाला जाता है. तो यहां पर किससे डिफरेंस निकाला है? 4 से. तो आंसर क्या होगा? 4. तो अब दो चीज समझे हम लोग अभी तक कि अगर समेशन x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब अरिथमेटिक मीन का वैल्यू क्या होगा? 3. और अगर समेशन मॉड x माइनस 4 इज लेस देन समेशन मॉड x माइनस a, इसका मतलब 4 का वैल्यू क्या है? मीडियन. 4 को छोड़ के किसी के साथ भी ले लो, वैल्यू ज्यादा आएगा. मिनिमम किस में आएगा? 4 में. मिनिमम किस में आएगा? 4 में. मिनिमम किस में आएगा? 4 में. तो ये दो प्रॉपर्टीज हम लोग मीडियन में कंसिडर कर सकते हैं. ये दो प्रॉपर्टीज हम लोग मीडियन में कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द कैलकुलेशंस ऑफ मीडियन ओनली, जस्ट हम लोग को थोड़ा बहुत डिफरेंस सीखना है इसमें. बाकी जो उसको मीडियन आता है वो पार्टीशन वैल्यू कभी गलत कर ही नहीं सकता है. जिसको मीडियन आता है वो पार्टीशन वैल्यू कभी गलत कर ही नहीं सकता है. क्यों नहीं गलत कर सकता है वो? क्यों, कॉन्सेप्ट तो वही है, खाली रैंकिंग चेंज होगा तुम्हारा. कॉन्सेप्ट तो वही है, खाली तुम्हारा क्या चेंज होगा? रैंकिंग चेंज होगा. तो ध्यान से हम लोग को समझना है. ठीक है. पार्टीशन वैल्यूज का मतलब होता है डिवाइडिंग अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिवाइडिंग a given set of observation into a number of equal parts. Dividing a given set of observation into a number of equal parts. ठीक है. When we want to divide the given set of observation into 2 equal parts, इसको हम लोग मीडियन बोलते हैं. 2 equal parts को क्या बोला जाता है? मीडियन. सिमिलरली अगर हम लोग को 4 equal parts में बांटना है, ठीक है, इंटू 4 इक्वल पार्ट्स में बांटना है, इसके लिए हम लोग को क्या यूज करना पड़ता है? क्वार्टाइल्स. सिमिलरली वी हैव 10 इक्वल पार्ट्स, वी हैव 10 इक्वल पार्ट्स, उसके लिए वी नीड डेसाइल्स. एंड देन वी हैव 100 इक्वल पार्ट्स, 100 इक्वल पार्ट्स, we have percentiles or centiles, we have percentile or centiles. So how many quartiles are there? 3. How many deciles are there? 9. How many deciles are there? 9 deciles. How many deciles are there? 9. And how many percentile are there? 99. 99.
हम लोग बोल सकते हैं फॉर्मूला बहुत सिंपल बना के k इंटू एन प्लस वन बाई के। तो अगर मान लो तुमको बोल रहा है 36 परसेंटाइल निकालो, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये के नहीं होगा, इसको आई कर एक सेकेंड, से फॉर एग्जाम्पल 36 परसेंटाइल, तो ये हो जाएगा 36 n प्लस वन बाई 100। ये अगर 8th डेसाइल बोलता तो 8 n प्लस वन बाई 10। क्वार्टाइल में नीचे 4 आएगा, मीडियन में 2 आएगा, मीडियन तो एक ही होता है जो कि हम लोग सीख लिए, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है वो हम लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये होता है कि ये अगर एक सीरीज है, दिस इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q3, तो Q1 क्या बोलता है, 25% ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर लोअर इट एंड 75% ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर अबव इट। Q2 क्या बोलता है, आधा आधा, एंड Q3 क्या है, 75% आर बिलो इट एंड 25% आर अबव इट। तो सिमिलरली अगर हम तुमसे पूछेंगे कि D4 का मतलब बताओ, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 4 इंटू 10 40, 40% आर बिलो इट एंड 60% आर अबव इट। चलो मेरे को बताओ P35 का, 35% आर बिलो इट एंड 65% आर अबव इट, ठीक है। तो फॉर्मूला यहां पे Q में L1 NP माइनस रैंकिंग चेंज होगा बस खाली, तो रैंकिंग हम लोग समझ लेते हैं, Kn बाई 4 क्वार्टाइल में है, Kn बाई 10 डेसाइल का है, और Kn बाई 100 परसेंटाइल का है। K का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, इसमें K कैन बी 1 2 3, इसमें K कैन बी 1 से लेकर के 9 तक, एंड इसमें K कैन बी 1 से लेकर के 99 तक। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको अरेंज करना पड़ेगा। किसी भी डेटा को सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, अरेंज करना है। तो हम लोग को नोट करना पड़ेगा, while calculating partition values, the first and the foremost thing is to arrange it in ascending order. ठीक है, तो सिंपल सीरीज में हम लोग n+1 यूज करते हैं, ध्यान रखना। और इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, ओनली n।
सिंपल सीरीज हम लोग क्या यूज करते हैं, n+1, इसमें हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ओनली n। स्मॉल n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, और कैपिटल N का मतलब होता है कैपिटल N का मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी। सो देखो ये मैं वही बता रहा था, यहाँ पे 2.75 आया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेकेंड वैल्यू प्लस 0.75 इंटू द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड एंड द सेकेंड। बट वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू arrange it in the ascending order। जैसे देखो यहाँ पे 6 बोला है तो 6/10 हो गया, Q है तो 4/10 यू 1/4 यूज कर रहा होगा, ठीक है ना। इसको ओपन एंड सीरीज बोलते हैं, दिस इज नोन एज ओपन एंड। एंड ओपन एंड के केस में हम लोग मीन कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हैं, डायरेक्टली तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज मीन कैलकुलेट करने के लिए यू नीड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें हम लोग एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, लेस देन कितना है पता नहीं ना, और मोर देन कितना है पता नहीं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन एंड अनइक्वल क्लासिफिकेशन। क्योंकि देखो यहां पर जो डिफरेंस है वो 200 का है, 200 का है, 200 का है, अब 400 का हो गया डिफरेंस, 200 200 200 400। बट पार्टीशन वैल्यूज को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ये भी नोट कर लो। इन केस ऑफ अनइक्वल क्लासिफिकेशन calculations will remain intact, calculations will remain intact, calculations will remain intact, ठीक है, तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर अगेन यहां पे 1 का डिफरेंस है, तो एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होगा 0.5, तो हम यहां से बाउंड्री बना लिया। अब Q3 बोला है तो 3n/4 इज 75, तो 75 कहां लाई कर रहा है मेरा, 75 मेरा यहां लाई कर रहा है, ये मेरा NL, ये मेरा NU, ये मेरा L1, ये मेरा L2 निकाल लेंगे हम लोग। L1 माइनस L2 करेंगे तो मेरा F आ जाएगा, I आ जाएगा, सॉरी I कितना है यहां पर 200। NU माइनस L करेंगे तो डिनोमिनेटर आ जाएगा, और 3n/4 माइनस NL करेंगे तो न्यूमरेटर आ गया। सॉल्व कर लो अब, 899.5 प्लस 75 माइनस 57 कितना होता है 18 बाई 84 माइनस 57 कितना होता है 27 इंटू 200। सो कैलकुलेटर में लोग सॉल्व कर लेंगे। 75 माइनस 18 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 27 प्लस
75 माइनस 18 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 27 प्लस 899.5। कुछ गड़बड़ आ रहा है। $75 माइनस 57 इक्वल्स टू इंटू 200 करना, डिवाइड बाई 27 प्लस 899.5, 1032.83। रुपया का साइन दे देना, क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी मैंने क्या बोला था, इट कैरीज यूनिट्स। सेम डीएन के लिए 7n/10। ठीक है, यहां तक हम लोग रख रहे हैं। अभी 10-15 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे मोड से। तब तक ये प्रैक्टिस कर लो।